Hello students, my name is Hiral Dodia from JMP English Medium School. Kids, we all know we have completed our 2 chapters. Our new chapter name is the skeletal system, lesson number 3. Before I start explaining this chapter, I just want to introduce vocabulary words and meanings of these chapters. So let's see that. Vocabulary words. Number 1, skeletal. S-K-E-L-E-T-A-L. Skeletal. S-K-E-T-E-L-A-L. T-A-L. Skeletal. S-K-E-L-E-T-A-L. Skeletal. Now, number 2, muscles. M-U-S-C-L-E-S. Muscles. M-U-S-C-L-E-S. Muscles. M-U-S-C-L-E-S. Muscles. Now, number 3, ribcage. R-I-B-C-A-G-E. Ribcage. R-I-B-C-A-G-E. Ribcage. R-I-B-C-A-G-E. Ribcage. Now, number 4, vertebrae. V-E-R-T-E-B-R-A-E. Vertebrae. V-E-R-T-E-B-R-A-E. Vertebrae. V-E-R-T-E-B-R-A-E. Vertebrae. Now, number 5, wrist. W-R-I-S-T. Wrist. W-R-I-S-T. Wrist. W-R-I-S-T. Wrist. Now, number 6, ligament. L-I-G-A-M-E-N-T. Ligament. L-I-G-A-M-E-N-T. Ligament. L-I-G-A-M-E-N-T. Ligament. Now, number 6, cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E. Cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E. Cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E. Cartilage. Now, number 8, tendons. T-E-N-D-O-N-S. Tendons. T-E-N-D-O-N-S. Tendons. T-E-N-D-O-N-S. Tendons. Number 9, voluntary. V-O-L-U-N-T-A-R-Y. Voluntary. V-O-L-U-N-T-A-R-Y. Voluntary. V-O-L-U-N-T-A-R-Y. Voluntary. Number 10, socket. S-O-C-K-E-T. Socket. S-O-C-K-E-T. Socket. S-O-C-K-E-T. Socket. Now, number 11, gliding. G-L-I-D-I-N-G. Gliding. G-L-I-D-I-N-G. Gliding. G-L-I-D-I-N-G. Gliding. Now, number 12, hinge. H-I-N-G-E. Hinge. H-I-N-G-E. Hinge. H-I-N-G-E. Hinge. Number 13, pivot. P-I-V-O-T. Pivot. P-I-V-O-T. Pivot. P-I-V-O-T. Pivot. Number 14, invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-E. Invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-E. Invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-E. Invertebrate. Number 15, skull. S-K-U-L-L. Skull. S-K-U-L-L. Skull. S-K-U-L-L. Skull. Now, number 16, girdle. G-I-R-D-L-E. Girdle. G-I-R-D-L-E. Girdle. G-I-R-D-L-E. Girdle. 17, pelvic. P-E-L-V-I-C. Pelvic. P-E-L-V-I-C. Pelvic. P-E-L-V-I-C. Pelvic. Now, number 18, kidney.
K-I-D-N-E-Y, kidney. K-I-D-N-E-Y, kidney. K-I-D-N-E-Y, kidney. Number 19, heart. H-E-A-R-T, heart. H-E-A-R-T, heart. H-E-A-R-T, heart. H-E-A-R-T, heart. Last, number 20, internal. I-N-T-E-R-N-A-L, internal. I-N-T-E-R-N-A-L, internal. I-N-T-E-R-N-A-L, internal. Now kids, let's read it and pronunciate once again. Skeletal. S-K-E-L-E-T-A-L, skeletal. Number 2, muscles. M-U-S-C-L-E-S, muscles. Number 3, rib cage. R-I-B-C-A-G-E, rib cage. Number 4, vertebrae. V-E-R-T-E-B-R-A-E, vertebrae. Number 5, wrist. W-R-I-S-T, wrist. Number 6, ligament. L-I-G-A-M-E-N-T, ligament. Number 7, cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E, cartilage. Number 8, tendons. T-E-N-D-O-N-S, tendons. Number 9, voluntary. V-O-L-U-N-T-A-R-Y, voluntary. Number 10, socket. S-O-C-K-E-T, socket. Number 11, gliding. G-L-I-D-I-N-G, gliding. Number 12, hinge. H-I-N-G-E, hinge. Number 13, pivot. P-I-V-O-T, pivot. Number 14, invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-E, invertebrate. Number 15, skull. S-K-U-L-L, skull. Number 16, girdle. G-I-R-D-L-E, girdle. Number 17, pelvic. P-E-L-V-I-C, pelvic. Number 18, kidney. K-I-D-N-E-Y, kidney. Number 19, heart. H-E-A-R-T, heart. 20, internal. I-N-T-E-R-N-A-L, internal. Now kids, let's pronunciate once again. Skeletal, muscles, rib cage, vertebrae, wrist, ligament, cartilage, tendons, voluntary, socket, gliding, hinge, pivot, invertebrate, skull, girdle, pelvic, kidney, heart, and last internal. Kids, are you clear with vocabulary words? Yes? Now let's move to meanings. हम meanings देखेंगे. Number 1, skeleton. What is it? Skeleton. All the bones that support the body. जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जो सारे बोन्स होते हैं, हमारे बॉडी के फुल बोन्स जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन. जो बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटन. Each and every bone which supports our body, that is called skeleton. Clear? All the bones that support the body. Clear?
बोन्स मतलब पता है आपको, हड्डियाँ। हमारे यहाँ पे बोन्स होते हैं ना, ये सब आप टच करो, ये सारे के सारे बोन्स है। क्या है? बोन्स। बोन्स का क्या काम है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करना। कभी कभी फ्रैक्चर आ जाता है तो उसका मतलब कि उसमें क्रैक हुई होती है। बोन्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हम मिल्क पीते हैं, अच्छे अच्छे हेल्दी फूड्स खाते हैं, इससे क्या होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इससे हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। जल्दी से उसको हम मतलब कि नुकसान होता नहीं है। बट अगर बहुत जोर से लगती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसमें क्रैक आ सकती है, हड्डियाँ टूट सकती है। तो वी आर सपोज्ड टू ईट सम हेल्दी फूड्स टू कीप आवर बोन्स हेल्दी। तो उसमें कभी भी क्रैक्स आएगी नहीं। हम बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, बुरी तरह से गिरते हैं, तो उसमें क्रैक आने की हमारी नेसेसिटी आ जाती है। तो क्लियर किड्स, कि हमारा बॉडी में जो होता है, जो बॉडी में सपोर्ट करता है, कौन सपोर्ट करता है? हमारा स्केलेटन। क्लियर? नाउ नंबर 2, एडल्ट, अ पर्सन दैट इज फुल्ली ग्रोन। जो पर्सन बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडल्ट। किड्स, आप किड्स हो, आप चिल्ड्रन हो, चाइल्ड हो, बट आपके पेरेंट्स क्या है? एडल्ट, मतलब कि वो बड़े हो चुके हैं। जैसे कि हम ओल्ड को क्या बोलेंगे? ओल्ड। आपको क्या बोलूंगी मैं? चाइल्ड। तो एक स्टेज होता है कि एक इंसान छोटे से बड़ा हो जाता है, उस बड़े को हम क्या बोलेंगे? एडल्ट। इसमें आपके पेरेंट्स भी एडल्ट है, दीदी भी एडल्ट है, आपके बड़े भाई बहन होंगे वो भी एडल्ट में कंसिडर होंगे। जो 18 अबव है, छोटे छोटे 5, 7 इयर्स 12 इयर्स के ब्रदर सिस्टर किड्स में ही आएंगे। ओके, तो एडल्ट का मतलब क्या समझे आप? कि जो इंसान बड़ा हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? एडल्ट। मतलब कोई भी बड़ा मैच्योर हो चुका है वो इंसान, उसको अच्छा या बुरा समझ में आ सकता है। आपके पेरेंट्स को आपको पता होता है ना कि आपको कैसे समझाना है, क्या आपको चाहिए, पता होता है ना। तो वो क्यों पता है? क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। आपको क्या करना है? आपके पेरेंट्स की सारी बातें माननी है, क्योंकि वो एडल्ट है, आप किड्स हो। क्लियर? नाउ नंबर 3, इंजर्ड, पीपल हु हैव बीन हर्ट। कोई भी पर्सन जिसको घाव लगा है, हर्ट हुआ है, मतलब उसको कुछ लगा है, उसको क्या बोलेंगे? इंजर्ड। कोई भी वोंड मतलब कुछ भी लगा हो। हम આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે છોલાઈ ગયું છે, લાગી ગયું છે, એવું બધું બોલે ને આપણે લોકો। इसका मतलब इंजर्ड। कोई भी पर्सन को कुछ भी लग जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंजर्ड। एक्सीडेंट में भी लग सकता है, कोई भी चीज उसके ऊपर गिर सकती है। There are so many different kinds of things happen to us, right? In a different way, बहुत different वे में हमारे ऊपर कुछ हो सकता है। एक्सीडेंट, गिरना, स्लीप हो जाना, कुछ भी हमारे ऊपर गिरना, किसी का धक्का लग जाना, तो भी हम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ होती है। अगर कोई भी इंसान को उस वजह से कुछ लग जाता है, इसका मतलब कि वो हर्ट हो चुका है, उसको लगा है, मतलब वो इंजर्ड है। क्लियर? तो इंजर्ड मतलब क्लियर, किसी को कुछ भी लगा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंजर्ड। नाउ नंबर 4, अटैच, जॉइन समथिंग टू समथिंग। कुछ भी चीज को एक चीज के साथ ज्वाइंट करना, उसको मतलब अटैच करना। किड्स, हम एक पेपर को दूसरे पेपर से स्टेपल करते हैं तो उसको क्या करना है? अटैच। बट ये चैप्टर का नेम क्या है? द स्केलेटल सिस्टम, मतलब बोन्स की पूरी सिस्टम। तो इसमें अटैच का मतलब क्या होता होगा? सी किड्स, यहाँ पे भी एक बोन है, यहाँ पे भी एक बोन है, तो यहाँ का जो मिडल वाले जो बोन्स होते हैं ना, यहाँ से उसको अटैच हुए होते हैं। क्या हुआ होता है? अटैच। आपको इसी चैप्टर में डेप्थ में आगे आएगा वो किसके बोन को क्या बोलेंगे, किससे अटैच होता है, उस बोन्स को क्या बोलेंगे, सब कुछ इसी नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में आपको आगे आएगा।
अभी क्लियर हुआ? अटैच करना, यहाँ पे एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड के साथ अटैच होता है, उसको क्या बोलेंगे? अटैच। क्लियर? कोई भी चीज को, एक चीज से दूसरी चीज को हम अटैच करेंगे तो उसको भी अटैच बोल सकते हैं। जैसे कि दीदी ने पेपर का एग्जांपल दिया, हम कुछ भी अटैच कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नंबर 5, एंकल, the part of your body where your foot joins your leg. आपका जो फुट होता है और लेग होता है, उसके बीच का एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे? एंकल बोलेंगे। और गुजराती में कहीं ना घुटी, घुटी उन दो पार्ट को जो मर्ज करता है ना, उसको क्या बोलेंगे? एंकल। क्लियर? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द पार्ट ऑफ योर बॉडी वेयर योर फुट, फुट अब टच करो अपना फुट जॉइंस योर लेग, फुट और लेग के बीच का जो पार्ट होता है, जो दोनों को ज्वाइन करता है, उसको क्या बोलेंगे? एंकल। घूंटी वाળો પાર્ટ હોય ને, જે ફૂટ અને લેગ જે બંને ત્યાંથી જોઈન થાય, એને શું કહેવાય? એંકલ કહેવાય. ક્લિયર? નાઉ નંબર 6, contracts. To become or to make something shorter or smaller. Contracts मतलब कोई भी चीज जैसे धीरे धीरे शॉर्टर और स्मॉलर होना चाहती है, मतलब संकोचाई जाए, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स। सिकुड़ना, सिकुड़ना क्या मतलब? सिकुड़ जाता है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड मतलब वो एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो छोटा होता है, सिकुड़ जाता है, और एक्सपांड मतलब बड़ा हो जाता है। इसी जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, वो हम कोई भी बिस्किट या चॉकलेट्स खाते हैं ना, उसका पैकेट कितना बड़ा होता है, हाथ में उसको ऐसा करके हम लोग पहले उसको, उसका मतलब क्या हुआ? सिकुड़ जाता है वो। फिर ऐसे उसको छोड़ोगे ना, अचानक से उसको खोलोगे ना, तो क्या करेंगे? वो एकदम से एक्सपांड हो जाएगा। क्लियर? बट इस चैप्टर में इसका मतलब क्या है? कोई भी लेग्स और कुछ भी होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं और एक्सपांड भी होते हैं, वो मैं इसी चैप्टर में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ नंबर 6, होल्ड, टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन. આપણે કહીએ ને કિડ્સ કે હોલ્ડ मतलब પકડીને રાખો, હોલ્ડ मतलब પકડીને રાખો, बट ये चैप्टर में टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में कोई भी एक चीज को पकड़ के रखता है ना स्केलेटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल्ड. क्लियर? समझ में आ रहा है ना किड्स? होल्ड मतलब पकड़ना, तो भी स्केलेटल सिस्टम से कोई भी चीज उसको पकड़ के रखती है, इसका मतलब उसको होल्ड करना. क्लियर किड्स? आई होप सो आपको मीनिंग्स अच्छे से समझ में आएंगे. मीनिंग समझ में आएंगे ना, तो चैप्टर आपको समझना इजी रहेगा. क्लियर? Now kids, once again Didi is reading all the meanings. Number 1, skeletal, all the bones that support the body. सारे के सारे bones जो body को support करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? skeleton. Number 2, adult, a person that is fully grown. एक इंसान जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है. Number 3, injured, people who have been hurt. मतलब कोई भी पर्सन जो हर्ट हो चुका है, मतलब उसको लगा है, वाउंड हुआ है, वॉन्ड हुआ है. क्लियर? नंबर 4, अटैच, join something to something, join something to something. Now ankle, the part of your body where your foot joins your leg. फुट और जॉइंट, लेग को जो पार्ट जॉइंट करता है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? एंकल बोलेंगे. क्लियर? नाउ 6, कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सिकुड़ना, टू बिकम और टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर. मतलब क्लियर किड्स? नंबर 7, होल्ड, टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन. टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, कोई भी चीज को समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, किसी भी चीज को अच्छी तरह से पकड़ना, होल्ड करना. क्लियर किड्स? ये सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? वोकैब्युलरी वर्ड्स और मीनिंग्स. फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं
तो आपको अच्छे से वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स आ जाएंगे ना समझ में, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाएगा। क्लियर? नाउ फटाफट से रीड कर लेते हैं। स्केलेटल, मसल्स, रिब केज, वर्टिब्रे, wrist, ligament, cartilage, tendons, voluntary, socket, gliding, hinge, pivot, vertebrae, skull, girdle, pelvic, kidney, heart, internal. Meanings: skeleton, all the body that support the body, all the bones that support the body. Number 2, adult, a person that is fully grown. Number 3, injured, people who have been hurt. Number 4, attached, join something to something. Number 5, ankle, the part of your body where your foot joins your leg. Number 6, contracts, to become or to make something shorter or smaller. Number 7, hold, to keep something in a certain position. I hope so kids you understand all the vocabularies and meanings of this chapter. Now kids, I am sending a PDF with this section. You need to copy down all the vocabulary words and meanings in your CW. Exactly like Didi. Didi ने जैसा लिखा है, Didi have wrote all the things exactly like that. You have to copy down in your CW with neat and clean handwriting. Clear? दीदी को गंदे राइटिंग पसंद नहीं है। अभी जब स्कूल खुलेगी तो दीदी बुक चेक करेगी ना, तो आई वांट वेरी नीट एंड क्लीन वर्क। प्लीज यूज स्केल। मैं यहाँ पे आपको मेरी बुक दिखाऊं किड्स। यहाँ पे दीदी ने क्या किया है कि बहुत अच्छी तरह से लिखा है, स्केल का यूज करके, हाथ से नहीं स्केलिंग किया है, हाथ से नहीं यूज किया है। क्लियर? इतना क्लियर वर्क चाहिए। होप सो आप होमवर्क कर लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर की हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।